السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں حریہ چوہدری۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ گاؤں رنیکے میں 3 بچوں اور ماں کو مبینہ طور پر زہر دے دیا گیا۔ ایک بچہ جام بحق، ماں اور 2 بچے ہسپتال منتقل۔ ماں سمیت دونوں بچوں کی حالت تشویشناک۔ ایک بچہ لاہور ریفر۔ جام بحق بچے کا نام عبداللہ عمر 7 سال بتائی جاتی ہے۔ 9 سالہ احمد، 10 سالہ امان فاطمہ اور 35 سالہ مصباح DHQ ہسپتال میں زیر علاج۔ تینوں بچوں اور والدہ کو مبینہ طور پر زہر دیے جانے کا شبہ۔ پولیس مصروف تفتیش، فرانسک کی ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ دوسرا بچہ بھی احمد خدا کو پیارا ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کندکوٹ میں برسات متاثرین کے لیے ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی جانب سے امدادی ریلیف کیمپ کا انعقاد، جس میں مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جمال الدین چاچڑ کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کی ٹیم کی جانب سے برسات متاثرین کے لیے امدادی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا۔ اس موقع پہ ہیومن رائٹس ٹیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل، یہ ہم نے جو ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے برسات متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگائی۔ اس کو 2 دن ہو گئے ہیں۔ مخیر حضرات نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، شہریوں نے تعاون کیا، ہم ان کا بےحد شکر گزار ہیں۔ ہاتھ بن کے تھوڑے عرض کرتا پیا کہ مہربانی کرو جڑے دیکھو آ کے انہاں غریباں دا کے حال ہوندا پیا ہے۔ کوئی غریباں دے گھر ڈھہ گئے۔ شہر والا آहिनि जेके बि पंहिंजा सुठा माण्हू हुया उन्हनि सां असां तावन कयो आहे। जेके ह्यूमन राइट्स जे तरफ़ां पाण कैंप लॻायो आहे। جی ہم نے یہ امدادی کیمپ لگائی تھی، ریلیف کیمپ لگائی تھی، جو برسات متاثرین کے لیے جو ہیومن رائٹس کی جانب سے ہمارے کافی دوستوں نے مدد کی۔ اور بڑے تو بڑے لیکن بچوں نے بھی اس مشکل گھڑی میں برسات متاثرین کے لیے رو رو کے کہتے ہوئے کہا کہ असां हथ ॿधी अपील कयूं था त ग़रीबनि जी मदद कयो। انہوں نے مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخیر حضرات سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمال چاچڑ، آن نیوز، کندکوٹ۔ ایک اور خبر ہے کندکوٹ سے۔ کندکوٹ میں برسات متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ مفتی عبدالواحد سندھی نے آسمانی آفت کے پیش نظر برسات کے باعث کئی گھر گر گئے، جس کے نتیجے میں کئی افراد بے یار و مددگار ہیں۔ مفتی عبدالواحد سندھی کی کوششوں سے دارالعلوم کراچی کے علماء کرام، مفتی محمد تقی عثمانی کی ٹیم نے برسات متاثرین کے لیے امداد بھجوایا۔ شہر کے کئی متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ مفتی عبدالواحد سندھی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی میں نے فری میڈیکل کیمپ لگائے تھے اور پکا پکایا کھانا بھی تقسیم کیا۔ آج کئی مستحقین میں راشن تقسیم کیا۔ انشاءاللہ میرے مرتے دم تک انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں مشکور ہوں ٹیم کراچی کا، بالخصوص اپنے پیارے بھائی میرے جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل مولانا مفتی خبیب صاحب کا اور مفتی زاہد حسین صاحب کا اور تمام ان علماء کرام کا جن کا دارالعلوم کراچی سے تعلق ہے، اور اس میں ٹیم کراچی نے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک رفائی اور فلاحی کام کیا ہے، جو مجھے بلا تفریق اور بغیر کسی تنظیم اور بغیر کسی اور رنگ و نسل کے، بغیر کسی مذہب کے فرق کیے، ہر ایک لوگوں کے پاس جا کر خود ان کی دہلیز تک سامان اور پکا پکایا کھانا یہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں الحمدللہ ٹیم کراچی نے مجھے ضلع کشمیر کی ذمہ داری دی ہے۔ میرے وہ ساتھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 8 دیگیں صبح، 8 دیگیں شام، اور پکا پکایا کھانا ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور راشن جو ہے الحمدللہ وہ سینکڑوں لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کو ہمارے پاس مزید راشن انشاءاللہ آئے گا، وہ بھی راشن جو ہے ان کی دہلیز تک بغیر کسی تفریق کے انشاءاللہ متاثرین تک، سلام زدگان تک پہنچایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جو علاقہ ہے وہ پانی سے ڈوبا ہوا ہے۔ اب جام سوار چاچڑ کا گاؤں ہے اور میگل خان چاچڑ کا گاؤں ہے، جتنے بھی جو یہ دریا کے کنارے پر لوگ گاؤں بسے ہوئے ہیں، اور جو غوثپور کا جو کچے کا علاقہ ہے، کندکوڑ کے کچے کا علاقہ ہے، یہ سارے اور گڈو اور کشمور اور بڈانی کے کچے کے علاقے ہیں، سارے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام کراچی کے علماء سے، بزرگان سے، اور اپنے اساتذہ کرام سے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام سے کہ استاد جی ہمارے طرف آپ کا توجہ اور شفقت پہلے تھی اور ہے ہمیشہ رہے گی، اور مزید جو ہے
آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ٹیم کو متحرک کریں اور ہمارے طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں تاکہ ان لوگوں کے بیچاروں کے جو دکھ ہیں ان کو دکھ میں کچھ نہ کچھ مرہم رکھ سکیں. بڑی مہربانی, جزاکم اللہ, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہاول نگر میں قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کا اجلاس صدر قائد اعظم پریس کلب چودھری طارق محمود کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں جنرل سیکرٹری محمد اعظم خان, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری علی رضا جویا, سینئر نائب صدر محمد اشرف تھانوی, دیگر عہدیداران ممبران نے بھرپور شرکت کی. اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. اجلاس میں عہدیداران ممبران کی باہمی مشاورات سے کلب ہاؤسہ کے ممبرشپ اوپن کرنے کا فیصلہ. اس موقع پر صدر قائد اعظم پریس چودھری طارق محمود نے عہدیداران ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. صحافی کا کام حق سچ کی آواز بلند کرنا ہے. صحافی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. ہمارا پریس کلب تمام صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. رخ کرتے ہیں ہرون آباد کا. اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق دکھی اور بے سہارا انسانیت کی خدمت ہمارا مشن ہے. سیلاب کی اس مشکل گھڑی میں ہاتف ویلفیئر سوسائٹی متاثرین کے ساتھ ہے. ان خیالات کا اظہار ہاتفین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. ملک بھر کے مخیر اور کاروباری حضرات سے درخواست کی کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. اس وقت سیلاب سے متاثرہ کروڑوں پاکستانیوں کی مدد کے لیے مشترکہ قومی کاوش کی ضرورت ہے. اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کر کے ہم رب رحمان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. رب رحمان نے ہمیں زندگی میں اپنا رسا پانی کا بہترین موقع فراہم کیا. ہاتف ویلفیئر سوسائٹی آئندہ چند روز میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ اور راشن پوائنٹس بنانے کا پروگرام فائنل کر چکی ہے. میڈیکل کیمپ میں مستند ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف, جبکہ راشن سینٹر میں کھانے پینے کی اشیاء, مچھروں کو بھگانے والی لوشن کی دستیابی, کچن کا سامان اہل علاقہ کو مہیا کیا جائے گا. اور اس موقع پر اہل شہر کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہماری اپیل پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دی. سیالکوٹ سے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ملک شاپ گوہد پور کی 5ویں برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر گوہد پور کے تاجروں اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی. راولپنڈی اور اسلام آباد میں پنجاب ملک شاپ کی بڑی اور مقبولیت کے پیش نظر سیالکوٹ میں 5ویں برانچ کا باقاعدہ افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں تلاوت قرآن پاک, نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیا. اس موقع پر ملک غلام عباس اعوان, ملک مدثر عباس اعوان, ملک قمر عباس اعوان, مینیجر رائے عاطف, مینیجر چودھری شہباز جٹ, مینیجر چودھری محمد ادریس سیال, ستار سیال کے علاوہ گوہد پور کے تاجروں اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی. اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. الحمدللہ ہماری سیالکوٹ میں ہماری یہ 5ویں برانچ ہے. پہلے ہماری کامیاب برانچیں ہیں. ایک کینٹ میں ہے ہماری گھنٹہ گھر کے پاس, اور ایک رنگپورہ روڈ کے اوپر ہے, اور ایک شاہپورہ روڈ کے اوپر ہے, اور ایک امام صاحب روڈ کے اوپر ہے. اور یہ ہماری 5ویں شاپ ہے. آج الحمدللہ ہم نے دکان کی اوپننگ کی ہے. اور اہل علاقہ کے لیے 2 کلو دودھ کے ساتھ 1 کلو دودھ بالکل فری ہے, اور 1 کلو دودھ کے ساتھ آدھا کلو دودھ بالکل فری ہے. اور اس کے ساتھ ہم بوتل بھی ہم نے بنائی ہے اپنی کمپنی کی, جو ہم ڈسکاؤنٹ میں سیل کر رہے ہیں. اور کلفی بھی ہے ہماری, دہی ہم اچھل بناتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہماری 5ویں اور کامیاب برانچ ہے. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اچھا معیار سیالکوٹ کی طرف جو عوام ہے ہم ان کو دیں. ہم پہلے راولپنڈی میں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, وہاں بھی ہماری اچھی برانچ کا کام ہے. اور الحمدللہ ادھر یہ ہماری 5ویں شاپ ہے, اس کا بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سیالکوٹ عوام کے لیے اچھی سی اچھی چیز پرووائڈ کریں تاکہ ہر آدمی جو ہے نا اس سے خوشحال ہو. شیخوپورہ میں صوبائی وزیر صحت صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے شرکپور کا وزٹ کیا اور تنظیم سازی سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کی. اس موقع پر صوبائی وزیر قانون خرم شہزاد ورد, کرنل ریٹائرڈ اعجاز حسین منہاس, نوشین حامد, سید سمسام بخاری, میاں ابو بکر شرکپوری, میاں جلیل شرکپوری, بریگیڈیئر ریٹائرڈ امان اللہ اصغر علی, وسیم رامی, میاں شکیل زمان اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. صوبائی وزیر صحت اور صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کے دوران تنظیم سازی کے اقدامات کا جائزہ لیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی 139 میں 11 ستمبر کو الیکشن جیتے گی. شیخوپورہ کے تمام عہدیداران کو گھر گھر مہم چلانے کی ہدایت کی. 11 ستمبر کو عمران خان کو ووٹ ڈالنے شیخوپورہ کی عوام ضرور نکلے گی. کہا کہ پاکستانی عوام وفاقی حکومت کی جانب سے مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکی ہے. 11 ستمبر کے لیے شیخوپورہ کی عوام کو موبائلائز کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شیخوپورہ میں یونین کونسلز کی سطح پر گھر گھر انتخابی مہم چلا رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے مزید کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان 9 ستمبر کو شیخوپورہ میں جلسہ کے ذریعے پاکستانی عوام سے خطاب کریں گے. شیخوپورہ میں تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ عدلیہ کو عمران خان کے
मनफी इक़दामात का सख्ती से नोटिस लेना होगा। इस अजीब लाटले को मोहलत देने की बजाय कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। इमरान खान ने IMF के मुआहदे से रोगर्दानी की, IMF की शराइत को पूरा न करने पर सूबों से खत लिखवाए, अदलिया की किरदार कशी की, एडिशनल सेशन जज को सरेआम धमकियां दी, माजी में भी पार्लियामेंट पर हमला, बिल चलाना, हुंडी की तरगीब देना और सिविल नाफरमानी, शहरियों को बंद करके धमकी देना जैसे इक़दामात किए गए। कहा कि अदम एतमाद के मौके पर आईनी खिलवाड़ खेला गया, इस पर भी कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी बना पर आज फवाद चौधरी जैसे लोग भी चीफ जस्टिस को मुआफी मांगने और फैसला इमरान खान के खिलाफ आने पर अवामी रद्द-ए-अमल की धमकियां देते हैं। कहा कि पाकिस्तान को धमकियों से चलाया जाना है, यहाँ आईनो कानून के मुताबिक चलाना है। बात अब अदलिया के कोर्ट में है, अदलिया मेरिट की बुनियाद पर केसों के जल्द फैसले करें। शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि इमरान न्यासी जमहूरियत दुश्मनी और वतन अजीज पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करने की साजिश परवान चढ़ा रहा है। PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, जल्द ये जमात सियासी जमहूरी अमल में किस्सा परीना बनने वाली है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जमहूरियत और वतन अजीज का हर कीमत पर दफा करेंगे। आगे PTI की सियासत में इल्जाम तराशी की रोशनी नई नहीं। इमरान खान ने सियासी हरीफों पर बार बार बेबुनियाद इल्जामात लगाए और फिर इन पर मुआफियां मांगी। अब भी जल्द फिर से मुआफियां मांगते नजर आएंगे। इमरान न्यासी अवाम की हिमायत खो चुके हैं। धरनों और इंतशार की सियासत करने वाले आए रोज नितना ये झूठ बोल बोल कर अपनी जहनी गिरावट वाजिया कर चुके हैं। उनका मुल्की मौशत की तरक्की राह रोकने का मंसूबा नाकाम होगा। वफाकी हुकूमत उनकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। शेखपुरा में इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक ज़िले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि नैब ज़दगान हरगिज़ सैलाब ज़दगान के मसीहा नहीं हो सकते। हालिया सैलाब ने मुतहदा हुकूमत की बदइंतज़ामी और बैड गवर्नेंस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। वफाक में बैठे अकाबत नाअंदेश हुक्मरान सूबों को मतहद करने की बजाय उल्टा नफाक का बीज बो रहे हैं। कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। हर पाकिस्तानी नजरें इमरान खान पर लगी हैं जो आवाम की तर्जुमानी का हक अदा कर रहे हैं। नाहल हुक्मरान मुल्क में होलनाक सैलाब के नतीजे में आने वाली अंदोनाक तबाही के बावजूद ब्लेम गेम से बाज नहीं आ रही और मुसीबत ज़दगान की इमदाद के नाम पर शबाबाजी और मुनाफरत पर मबनी बयानबाजी अफसोसनाक है। सैलाब ज़दगान की बहाली आबादकारी के लिए बयानात नहीं, संजीदा इक़दामात की जरूरत है। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द मुसल्लत शुदा वफाकी हुक्मरानों से कौम को निजात मिलेगी। PTI की जारी जदोजहद रंग ला रही है और इमरान खान की कॉल पर अवाम लब्बई कहते हुए उनके काफिले में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकजी ताजरान चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि ताजर बरादरी सैलाब ज़दगान की इमदाद बहाली के लिए अपना मरबूत किरदार अदा कर रही है। मरकजी अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भिजवाने का सिलसिला जारी। हम सैलाब मुतासिरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब ज़दगान की इमदाद बहाली के अज़म की तकमील के लिए अपनी अमली जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि शेखपुरा की ताजर बरादरी ने हर कड़े वक्त में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों का साथ दिया। इमदाद बहाली के अमल में मुकामी ताजर हमेशा पेश रहे और इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर ताजर बरादरी की जदोजहद जारी है। कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान की कॉल पर लब्बई कहते हुए आवाम ने जिस भरपूर जज्बा सारे कुर्बानी का मुजाहरा किया, सैलाब मुतासरीन की मसाली इमदाद की वो नाकाबिले फरामोश और रोशन मिसाल है। शेखपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अज़ीज़ मतवर्क ने कहा कि मुसीबत ज़दगान की मदद करना में से हाई और इबादत है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने सैलाब ज़दगान का हाथ थाम रखा है, जिन्हें ज्यादा देर परेशान हाल नहीं रहने दिया जाएगा। सिंध के मुतासरा किसानों के फसलों के नुकसान के अजाले समेत तमाम मुतासरीन को हर सतह पर रिलीफ की फ्राहमी, उनकी बहाली जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के जयाले शहर और गाँव से इमदादी सामान सैलाब से मुतासरा इलाकों में भिजवा रहे हैं। कहा कि वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की महरूमियों का मुदावा करेगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की अपील पर बैनुल अक़वामी बरादरी भी इमदादी सामान और रिलीफ फंड्स भिजवा रही है, जो बराह रास्त इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन की बहाली पर सर्व किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुतासरा इलाकों में खेत खलियान फिर से लहलाएंगे और हमारी ज़रई ज़मीन सोना उगलेगी। सैलाब की आड़ में ज़रई अजनास समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की मुजरमाना किल्लत और मसनूई महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मरबूत इक़दामात उठाने जा रही है। शेखपुरा में डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा में सांपों की भरमार, सांप ने नौजवान हवालाती को डस लिया। लड़ाई झगड़े में बंद हवालाती लकी वल्द मोहम्मद यासीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज मुआलजा जारी।
गोशा में वज़ीर आला पंजाब के विजन क्लीन एंड ग्रीन सरसब्ज शादाब पाकिस्तान के तहत मामन खसूसी वज़ीर आला पंजाब उमर इफ्तिखार की डेप्टी मेल एंड फीमेल एजुकेशन के दफ्तर में खसूसी आमद, फूलों की पत्तियां निछावर की, पौधे भी लगाए। साइमा और मोहम्मद साहिद ने उनको मुकम्मल तौर पर गोशा में महकमा तालीम में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मामन खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने तमाम मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई और पंजाब वज़ीर आला ने शजरकारी मुहिम के तहत दोनों दफ्तरों में पौधे भी लगाए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सदर थाना मंदनी पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई, 18 मोटरसाइकिल बरामद, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुलजिमान सूबे भर के अजला से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस थे। चोरी शुदा मोटरसाइकिल में मुख्तलिफ मॉडल की बाइक से शामिल हैं। मंदनी पुलिस ने बेशतर मोटरसाइकिल मालकान का सुराग लगाकर अपनी बाइक हवाले कर दी। चोरी शुदा मोटरसाइकिल मालकान ने चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। चोर मोटरसाइकिल गैंग की गिरफ्तारी SHO मंदनी की इंतहा मेहनत का नतीजा है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस फोर्स शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेगी। और इधर हरिपुर में मानसून की हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों की आमद की वजह से खानपुर डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। गुज़श्ता रात 12 बजे खानपुर डैम के स्पेलवे खोल दिए गए। पानी का अखराज 8,250 क्यूसेक किया जा रहा है। हरिपुर पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से स्पेलवे के रास्ते में आने वाले हरो पुल की करीबी तमाम आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन इस वक्त खानपुर डैम पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी नासिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों की वजह से मुल्क के तमाम आबी ज़खायर के लेवल फुल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से हरिपुर तरबेला डैम और खानपुर डैम के लेवल भी फुल हो चुके हैं। इस वक्त मैं हरिपुर खानपुर डैम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर डैम का जो फुल लेवल है वो 1982 फीट है, जबकि इस वक्त लेवल जो है वो फुल हो चुका है। और डैम ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी स्पेलवेज़ जो हैं खानपुर के वो खोले गए थे और आज रात भी 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक स्पेलवेज़ खोले जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से डैम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। स्पेलवेज़ के रास्ते में आने वाले तमाम मुल्का आबादियाँ जो हैं उनको उनमें ऐलानात करवाए गए हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर 1122 सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डैम इंतज़ामिया को भी अलर्ट कर दिया गया है। जी खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट शहर और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश जारी। बारिश से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। बारिश होने से गर्मी और हबस से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश शुरू होते ही बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रप कर गए। सूबा पंजाब में कपास की मौजूदा सूरत हाल बारे सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन चौहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में इजलास का इनेकाद। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील, डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद, डिविजनल डायरेक्टर्स ज़राअत उसी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। कपास के मौजूदा सूरत हाल बारे सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की सूबाई वजीर ज़राअत को ब्रीफिंग। इजलास में सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन चौहानिया गर्देजी को डेरा गाजी खान डिवीजन में सैलाब की वजह से कपास को पहचानने वाले नुकसान से मुतल्लिक आगाह किया। सूबा पंजाब में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। काश्तकारों को कपास साफ चुनाई बारे आगाही फ्राहम की जाए। इजलास में कपास के काश्तकारों के लिए कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के हमलो इंसाद के लिए एडवाइजरी जारी। वजीर ज़राअत की फील्ड फार्मेशन को कपास के फसल बारे काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई की हिदायत। खबर शामिल करते हैं जहलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज राजा तारिक महमूद सियासी समाजी रहनुमा मोहल्ला सुलेमान पारस की अयादत के लिए चौधरी जमुर्द याकूब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चहलम, चौधरी तसव्वुर खादिम बट बिलाल टाउन दीगर ने अयादत की। कहा कि राजा महमूद तारिक सियासी समाजी रहनुमा का सरमाया है। उनकी पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। जब भी पार्टी के लिए उनकी जरूरत महसूस हुई उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। राजा तारिक महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला जहलम के आए हुए वफूद का शुक्रिया अदा किया। आपको ले चलते हैं जंग की जानिब। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम के साहबजादे शेख अबू बकर वकास ने DCC की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगाया, रिलीफ कैंप का विजिट किया और डोनेशन भी दी। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम के बड़े साहबजादे शेख अबू बकर वकास ने महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की ज़ेर निगरानी
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कौंसल बराए रफाही इदारा जात रजिस्टर्ड झंग और जीत के इश्तराक से गैरिजन स्कूल सिस्टम के बाहर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ कैंप का विजिट किया। वहाँ पर मौजूद DCC के मेम्बरान सैयद माजिद जमान, जरीना शेख, डॉक्टर रियाज नौल और हाजी मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। DCC की खिदमात की तारीफ की। इस मौके पर सीनियर मेंबर DCC और जीत के सदर सैयद माजिद जमान के शेख अबू बकर वकास को कैंप के मुतालिक ब्रीफ किया। कहा कि हमें बहसीयत एक कौम सैलाब मुतासरीन मुसीबत ज़दा अफराद की मदद करनी है। शेख अबू बकर वकास ने DCC और महकमा सोशल वेलफेयर की खिदमात की तारीफ की। कहा कि आज मैं ज़ाती हैसियत से अपनी पॉकेट मनी से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 20,000 दे रहा हूँ, जो कि बहुत मामूली रकम है, मगर अपने दोस्तों और बुजुर्गों से अपील करूंगा कि जितना मुमकिन हो सकता है मुतासरीन सैलाब के दिल खोल कर मदद करें। इंसानियत की खिदमत से बढ़कर और कोई नेकी नहीं, इसका बहुत बड़ा रुतबा है। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अली चांडियों का कहना है कि मेहर शहर को बचाने के लिए जो रिंग बंद किया गया है उसमें शगाफ पड़ने पर मेहर की बादशाह और जिंदा दिल अवाम ने अपने शहर को बचाने के लिए पानी के आगे मिट्टी की जगह मेहर की जिंदा दिल के अवाम खुद को शगाफ की जगह लेटा कर मेहर शहर को बचा लिया। याद रहे कि मेहर के आसपास के मुकम्मल गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA फयाज अली भट्ट और शहरियों ने मिलकर मेहर शहर को बचाने में जो किरदार अदा किया, एक तारीख रकम कर दी। मेहर की आवाम के हौसले और जज्बात आपसे वीडियो में देख सकते हैं कि अपनी जान की भी परवाह न करते हुए हर एक को बचाने में मसरूफ हैं। हरीपुर में एबटाबाद बोर्ड मुंतकली के खिलाफ हरीपुर में रैली का इनेकाद किया गया। मजहबी जमात समेत सिविल सोसाइटी, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के अलावा तमाम मकातबा फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसमें शुरका ने एबटाबाद बोर्ड मुंतकली के फैसले को फिलफौर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया और बोर्ड मुंतकली को बच्चों के साथ जुल्म नाइंसाफी करार दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद बोर्ड की मुंतकिली के खिलाफ हज़ारा भर की तरह हरीपुर में भी हज़ारा कौमी महाज के ज़ेर इंतज़ाम आल पार्टी, सिविल सोसाइटी, मजहबी जमातों और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने एबटाबाद बोर्ड की मुंतकिली के खिलाफ मीडिया से बात करते हुए कहा, इस्लाहात के नाम पे हमारे बच्चों को ख़राब ना किया जाए, हमारी बच्चियों को पेशावर की तरफ ना धकेला जाए। अगर इस्लाहात करनी है तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। हम इस्लाहात के मानने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन ये कैसी इस्लाहात है कि 8 बोर्डों को आप ख़त्म करके एक बोर्ड बना दे। बदकिस्मती ये है कि वो जो हमारा हज़ारा की शनाख्त है, जो एबटाबाद बोर्ड है, उसको पेशावर मुंतकिल करने की एक साजिश की जा रही है और हम इस साजिश की भरपूर मजम्मत करते हैं। यही हुकूमत की मौजूदगी इतना बड़ा इस्तेसाल हो रही है और इतना बड़ा इस्तेसाल जो है असी कभी भी न मनते। इंशाअल्लाह ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हम रोडों पे भी कुर्बानियाँ देंगे, हम असम्बलियों में भी कुर्बानियाँ देंगे। इंशाअल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और किसी सूरत में भी हम अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेलने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, फिर हम ये एहतजाज का सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा और जब तक एबटाबाद बोर्ड वापस हज़ारे में नहीं आता, जब तक बहाल नहीं होता, जब तक सैकड़ों लोगों की जो नौकरियां हैं, आज उनके जो घरों के जो चूल्हे बुझ गए, वो वापस नहीं होते, वो बहाल नहीं होते, हमारा ये एहतजाज तमाम सियासी पार्टियों का, वकला का, सिविल सोसाइटी का, तलबा का, सबका, हम सबका ये एहतजाज एबटाबाद बोर्ड की बहाली तक जारी रहेगा। हम सब के इल्म में है कि तालीम जो है वो किसी भी मुआशरे के लिए बिल्कुल बैकबोन की हैसियत रखती है और आज आप देख रहे हैं कि हरीपुर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस फ़ैसले के हवाले से हरीपुर की आवाम को, हज़ारे की आवाम को ऑन बोर्ड रखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हज़ारा के हर ज़िला में जो है इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है, आवाम रिएक्शन दे रही है। हमारे बच्चों के मसाइल जितने करीब तरीन हल हों, हम उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट के इस फेल को कोई भी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। हरीपुर के शहरियों ने एबटाबाद बोर्ड मुंतकिली पर सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। हम एबटाबाद बोर्ड की मुंतकिली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। अगर नोटिफिकेशन को मुअत्तल न किया गया तो हम शहर रेशम ब्लॉक करने समेत हर तरह की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इजलास के बाद मरकजी रहनुमा ANP मलिक, तारिक अवान, मुस्लिम लीग नून, सिटी सदर मलिक नदीम, जमात उलमा इस्लाम रहनुमा इरफान पराचा ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। 25 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में हम अपने मुत्तफ़िका उम्मीदवार जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब को कामयाब कराएंगे। मलिक साहब, अक्सर ये हल्का आपका PK
76 मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप उम्मीदवार होते चुनावी, तो अपने हल्के को ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या मैसेज देते? देखें जी, आवाम अब वो तमाम सच्चाइयाँ जान चुकी है जो आज से 10 साल कबल 13 के इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए, फिर 18 के इलेक्शन से पहले जो पीटीआई ने वादे किए। इस सूबे में उनकी हुकूमत को 10वां साल शुरू हो चुका है और पौने 4 साल वो मरकज़ में भी हुकूमत कर चुके हैं। लेकिन पेशावर की आवाम के लिए उन्होंने क्या किया? पेशावर उन्होंने जो यहाँ से उनको जो इज़्ज़त मिली थी, बल्कि मैं ये यहाँ के ना ज़रूरी समझता हूँ कि 2013 में जब इमरान खान यहाँ से N31 से उन्होंने इलेक्शन किया था, उस वक्त N1 हुआ करता था, इलाका वही है, तो उस वक्त एक अंधा एतमाद उन पर किया गया। हम लोग पुख्तून कौम की ये रिवायत है कि पुख्तून कौम आप जब उनके पास चले जाते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तो ये इस पेशावर के अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा कि इलेक्शन जीतने के बाद एक इजलास मंगा के लोगों का शुक्रिया अदा करके और फिर यहाँ से दस्तबरदार हो जाते। उसका रद्द-ए-अमल उस वक्त भी आप लोगों ने देख लिया था कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर की शक्ल में कामयाबी हासिल हुई थी, NP से उम्मीदवार थे। अब भी मामलात हालात वैसे ही हैं। आवाम जान चुकी है, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। इनका सिर्फ़ और सिर्फ हवाई बातों तक, जैसे कि गुलाम अली ने कहा कि ये लोगों के कान खुश करते हैं, इस बार लोग इनके कान खफा करेंगे। तो यही हालात बन रहे हैं और आने वाला वक्त इंशाल्लाह 25 सितंबर को कामयाबी गुलाम अहमद बिलोर साहब की होगी। आज की ये मीटिंग PDM में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों के अहदेदारानों की मीटिंग थी। N31 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, खुसूसन PK 76 में इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से ये मीटिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी पार्टियों ने इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत की और तमाम सियासी पार्टियों का ये अज़म है कि हमारा पेशावर शुरू से ही दहशतगर्दी की लपेट में रहा है और यहाँ पे PTI के उम्मीदवार 2013 में इमरान खान रह चुके हैं और इस पेशावर ने इमरान खान को तकरीबन 90,000 से एबव वोट दिया था। और ये हमारे पश्तून रिवायत है कि हम हर मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। लेकिन बहैसियत जी बिल्कुल, हम उसी मीटिंग में मौजूद हैं और अमन अवार्ड याफ्ता समाजी रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा ANP मलक तारिक अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आज मीटिंग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह PDM के ज़ेरे एहतमाम हुई और PDM के तमाम तकरीबन लोकल लीडरशिप और कारकुनान तमाम हाजिर थे। वो जो इलेक्शन आ रहा है 25 सितंबर को, ज़िमनी इंतखाबात जो हमारे पेशावर N31 पे हो रहे हैं, इस हवाले से थी और सब ने मुतफ़िका तौर पर ये अल्हम्दुलिल्लाह वादा किया है कि हमने इलेक्शन के दिन निकलना है और हमने कैंपेन इस तरह करनी है कि जैसे हर कोई इस हल्के से गुलाम अहमद बिलोर है। और ये कैंडिडेट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ANP का नहीं है, ये अगर JUI है तो उनका भी कैंडिडेट है, PPP का भी कैंडिडेट है, आफ्ताब शेरपा पार्टी का भी, QWP का भी है, नून मुस्लिम लीग नून का भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये NP का भी, तो ये सब का मुश्तरका कैंडिडेट है और सब ने मुश्तरका तौर पे ये ऐलान किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला रहमान ये बाकी जो दिन है इलेक्शन को हमने शब और रोज़ एक करना है और 25 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला रहमान लालटेन के हक़ में वोट देना भी है और दिलवाना भी है। मलिक साहब आपकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत है PK 75 के लिए, तो अपने हर क्या पैगाम है? गुजारिश मेरी ये है कि ये PK 76 है और आगे जाके ये PK 79 हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शन जो हो रहा है मौजूदा तो ये PK 76 पे हो रहा है। गुजारिश मेरी ये है कि मेरे तो जो बस में होता है छोटी मोटी खिदमत इंशाअल्लाह ताला रहमान मैं अपनी ज़ाती तौर पे इनकार नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।